पैसेज है उसके बारे में आपके साथ चर्चा करूंगी। तो आप लोगों को एक इंग्लिश मैनुअल फॉर स्टैंडर्ड 9 करके एक डॉक्यूमेंट मिला होगा, उसको हम रेफर करेंगे। और जो सैम्पल वर्कशीट्स का एक सेट मिला है उसमें लास्ट की 2 वर्कशीट्स है वो इंग्लिश की वर्कशीट्स है। सो थोड़ा पहले टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो है उसको देख लेते हैं। एक इंग्लिश मैनुअल जिसकी कॉपी अभी आपके पास है वो पर टीचर मटेरियल है। 24 वर्कशीट्स बनी है जो स्टूडेंट्स के लिए बनी है और आंसर की है जो टीचर्स के पास एक कॉपी दी जाएगी। एंड आंसर्स आर ओनली फॉर क्वेश्चंस दैट आर ऑब्जेक्टिव टाइप, नॉट सब्जेक्टिव टाइप ऑब्वियसली। वर्कशीट्स में जो पैटर्न है या जिस तरह से उसको स्ट्रक्चर किया गया है, ये सिलेबस जो DOE स्कूल्स के लिए प्रिस्क्राइब सिलेबस है क्लास 9 का इंग्लिश के लिए, we have incorporated that in the worksheets and we have ensured that every worksheet is made in a self-learning format. So which means that जो concept है उसको बहुत simple भाषा में समझाने की कोशिश करी है through examples. उसके बाद there are further examples to further stress on the concept and then there are some unsolved questions for the students to solve. This is a sample worksheet on prepositions. So the first box explains very simply prepositions क्या होते हैं, examples दिए गए हैं उसको अच्छा से stress करने के लिए। Students जब इसे पढ़ लें, समझ लें, then they are expected to solve these questions that you're seeing on the right side. So what I was talking about earlier, that concept है उसको explain किया गया है, examples are unsolved questions. So this is a sample of that. अगर आपको और देखना है तो आपके पास जो 2 वर्कशीट्स दिए हैं उसमें भी आप इस तरह का एक पैटर्न देख सकते हैं। जो इंग्लिश में टोटल 24 वर्कशीट्स है उसको हमने 4 लेवल्स में बांटा है। प्लीज ये जो लेवल है ये वर्कशीट का लेवल है, क्लास में जो लेवल्स है उनका this does not mean the same as level of students. I'm strictly talking about the level of worksheets over here. So जो पहले की 5 वर्कशीट्स हैं, the topics included are nouns, singular plural nouns, pronouns and adjectives. And the 5th worksheet revises the 4 topics. ये जो topics है वो syllabus में नहीं है, but the reason we included these topics was that in concepts का बार-बार mention होगा आगे आने वाले worksheets में. So we thought it's best to maybe review background knowledge. आगे जाने से पहले हम एक बार review करें कि क्या students clear हैं, because nouns and verbs and pronouns are extremely basic topics English में, I mean language में. So the idea was to check how much students know, what is it that they need to know to be able to do the subsequent worksheets better. तो पहले की 5 वर्कशीट्स को हम बेसिक लेवल बोलेंगे। वर्कशीट 6 through 17 are worksheets based on grammar and these are topics जो grade 9 के syllabus पे है। So there is tense, there are determiners, there are punctuations. So इन topics पे ये worksheets based है। उसके आगे आने वाले 18 through 20 are application of grammar. So basically जो students level 1 and level 2 में practice कर रहे हैं उसका एक practice या उसका एक application होगा वो level 3 में होगा, जिसमें article writing और letter writing जैसे topics पे worksheet बने हैं। Level 4 is our mock summative assessment 2. So summative assessment 2 के pattern को ध्यान में रख के हमने worksheet 21 through 24 develop किए हैं। Now obviously there is a progression. Worksheets included in level 1 are definitely easier than worksheets included in the subsequent levels. उसके अलावा अगर आप level 4 के worksheets देखेंगे, there are many unseen passages given in the worksheets and the unseen passages have been
written in increasing order of difficulty. तो unseen passage 1 is very easy. In fact आपको शायद इसको देख के लगेगा कि वो लेवल जो समेटिव असेसमेंट 2 का जो एग्जाम में पैसेज आता है उससे बहुत इजी लेवल का है, मे बी फॉर स्टैंडर्ड 5 और 6, बट दिस इज डन so that we maybe help children or maybe make them more comfortable with the idea of an unseen passage, and then take them to more grade appropriate unseen passages. Now kuch worksheets hai, the numbers are here 5, 8, 13, 16 and 20. इनको revision worksheet करके develop किया है, and उसके ऊपर there will be it's actually called a revision worksheet. आपके पास जो सैंपल दिया गया है और एक सैंपल यहाँ पे भी दिया है कि लैंग्वेज जो यूज, जिस तरह से लैंग्वेज को हमने कंस्ट्रक्ट किया है इन वर्कशीट्स को डेवलप करते समय, यू विल सी दैट व्हाइल इट इज एन इंग्लिश, वी टॉकिंग अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज, वी हैव नॉट यूज्ड प्योरली इंग्लिश टू राइट द कंटेंट ऑफ द वर्कशीट्स. हमने इसमें हिंदी का भी काफी जगहों पर यूज किया है जहाँ पे भी कॉन्सेप्ट या शब्द ऐसे थे जो डिफिकल्ट थे, तो हमें लगा उनको हिंदी का इस्तेमाल करके बेहतर समझा सकते हैं, तो हमने वहाँ पे हिंदी यूज करी है. तो ये बाइलिंगुअल जो अप्रोच है, इन द पास्ट ऑल्सो वी हैव यूज्ड दिस विद डिफरेंट ग्रेड्स, विद डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, एंड इट हैज वर्कड वेल. People have their doubts that if you're teaching someone English, what is the point of including a second language? But it does help, खासकर तब जब बच्चों या किसी को भी, कोई भी लर्नर किसी भी एज ग्रुप का है, अगर उन्हें कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत है या फिर दे नॉट वेरी कॉन्फिडेंट विद द यूज ऑफ द लैंग्वेज, एक ऐसी लैंग्वेज का यूज करना जिसके साथ उनकी फेमिलियरिटी ज्यादा है, इट ऑब्वियसली मेक्स द प्रोसेस ऑफ कॉम्प्रिहेंशन फास्टर. सो इसीलिए हमने काफी जगहों पे हिंदी का इस्तेमाल किया है टू एक्सप्लेन थिंग्स बेटर. Now, when you जब क्लास में जो असेसमेंट है उसमें आपको पता है कि 3 तरह के स्कोर, there will be 3 different groups of scores, 0 to 2, 3 to 4 and 5, and students are likely to end up either in 0 to 2 or 3 to 4. ज़्यादातर students इन 2 brackets पे स्कोर करेंगे. There may be students, we hope that 5 questions करने वाले students भी अच्छे, there should be a good number. Now, worksheet 1 is a basic worksheet, and a lot of you may feel that हर student को शायद उसकी जरूरत नहीं है, but we would suggest that every student should start right from worksheet 1 और वो हर worksheet करते जाए. Obviously, जिस स्टूडेंट्स का हर स्टूडेंट का अपने कॉम्पिटेंसी, अपने स्किल के हिसाब से एक अलग अलग स्पीड होगा, तो जो स्टूडेंट्स जल्दी करेंगे वो डेफिनेटली आगे निकल जाएंगे, पर शुरुआत सबको वर्कशीट नंबर 1 से करनी है. जो बच्चे 0 to 2 ब्रैकेट में स्कोर करेंगे, या जो बच्चे ऐसे हैं जो बेसिक लेवल पे बहुत टाइम लगा रहे हैं, टीचर्स को उनको बहुत ज्यादा हैंड होल्डिंग करके बहुत ज्यादा सपोर्ट करने की जरूरत है. जो बच्चे स्कोर 5 लाए हैं टेस्ट में, या जो बच्चे बहुत जल्दी वर्कशीट्स कर पा रहे हैं, इट वुड बी अ गुड आइडिया टू मे बी यूज देम एज फैसिलिटेटर्स. तो आप लोग कोशिश करें कि वो लोग भी शायद अपने क्लासमेट्स को हेल्प करें समझने में टॉपिक्स. सो एवरीबडी स्टार्ट्स एट लेवल 1, एंड करने का तरीका ये होगा दैट हम इसमें दोनों ग्रुप वर्क और इंडिविजुअल वर्क को बैलेंस करेंगे. तो जब एक नई वर्कशीट क्लास में मिल रही है, इट वुड बी नाइस अगर बच्चे उसको ग्रुप में डिस्कस करके दे ट्राई टू अंडरस्टैंड एज ए ग्रुप की इस वर्कशीट में बात क्या हो रही है, व्हाट इज द वर्कशीट ट्राइंग टू टेल अस. वंस दे क्लियर विद द कॉन्सेप्ट, वो वर्कशीट को करना शुरू करें इंडिविजुअली. नाउ दैट हैज टू बी स्ट्रिक्टली वेरी एन इंडिविजुअल थिंग, तो वो ग्रुप में या पेयर में नहीं होना चाहिए. एंड वंस स्टूडेंट्स हैव डन द वर्कशीट्स, दे कैन रीग्रुप, अपने ग्रुप के साथ वापस आए और उसके बाद चर्चा करें कि वो समझे कितना, मे बी इवैल्यूएट देयर आंसर्स टू सी उन्होंने कितना, हाउ मेनी आंसर्स हुएवर गॉट करेक्ट. क्लासरूम प्रोसेस हर वर्कशीट को करने का सेम रहेगा.
what students already know, which works well. आप background knowledge या prior knowledge को activate करें. For example, अगर हम punctuations पढ़ा रहे हैं students को, तो हम पहले उनसे पूछें कि आप क्या जानते हो punctuation के बारे में, या कहाँ पे use करते हो punctuation, या maybe write something on the board and ask them to point out इसमें punctuation कहाँ पे है, and this has to be discussed with the whole class together. जब आपको लगता है कि एक satisfactory level तक discussion पहुंच गया है, you distribute the worksheet and ask students to study the worksheet individually. Maybe वो कुछ time spend करें, punctuation का जो concept worksheet में समझाया है, जो उदाहरण दिए गए हैं, उनको समझने की कोशिश करें. अपने ग्रुप्स में ना, पूरे क्लास के साथ नहीं, पर मे बी हर 5 स्टूडेंट का एक ग्रुप डिस्कस करे दैट वो क्या समझे थे जो वर्कशीट में बताया जा रहा है उससे. अभी तक हम स्टूडेंट्स को राइट करने को या सॉल्व करने को नहीं बोलेंगे. ग्रुप्स के डिस्कशन करने के बाद भी इट विल बी नाइस इफ टीचर्स कैन ऑर्गेनाइज अ क्विक क्वेश्चन एंड आंसर सेशन, क्योंकि शायद ग्रुप में चर्चा होने के बाद कुछ ऐसे डाउट्स निकले हैं जो अभी तक एड्रेस नहीं हो पाए हैं, तो उनको टू आंसर दोस क्वेश्चंस एक क्वेश्चन एंड आंसर, एक very brief session maybe could be organized with the whole class again. After this, students can be asked to start writing the answers, to start solving the worksheet individually. Now, to evaluate the worksheet, there will be, now it obviously depends on किस तरह के सवाल हैं. अगर objective type questions हैं, तो आपको उसकी आंसर की दी हुई है. आप ऐसे कर सकते हैं कि हर पार्टनर के साथ हम अपना वर्कशीट एक्सचेंज करें और अपने पार्टनर का काम असेस करें, एंड टीचर विल बी फॉलोइंग आउट द आंसर्स फ्रॉम द आंसर की. बट जब बाद के सवाल आएंगे, खासकर जिसमें राइटिंग इन्वॉल्व है, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे, उसमें क्योंकि आंसर की नहीं है, इट्स नॉट पॉसिबल, उसमें पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो जरूरी नहीं कि जो टीचर का आंसर है उससे स्टूडेंट का आंसर मैच करे. इन दैट केस, जैसे हिंदी में डिस्कस हुआ कि आपको शायद रैंडमली कुछ वर्कशीट्स ले लेने हैं और उनको इवैल्यूएट करना है कि स्टूडेंट्स किस तरह की मिस्टेक्स कर रहे हैं, पैटर्न क्या है, क्या ये मिस्टेक्स स्पेलिंग से रिलेटेड है, या ग्रामर से रिलेटेड है, या पंक्चुएशन से है, या सेंटेंस कंस्ट्रक्शन नहीं आ रहा है, मे बी हैंड राइटिंग से रिलेटेड भी आपको मिलेगा कि बहुत खराब हैंड राइटिंग है. So the focus of your evaluation should depend on the pattern that you have analyzed. जिस तरह की गलतियां आपको अपने एनालिसिस में नजर आ रही है, आपको अपना इवैल्यूएशन और क्लास में जो डिस्कशन रखना है वो इन्हीं पॉइंट्स के आसपास रखना है. This discussion would be done with the whole class, and this would also conclude the topic. Apart from the worksheets that have been developed, because it's a language, vocabulary plays a very important role in how much can you use the language. जितना हमारा vocabulary बेहतर होगा, of any language, हम उस language को उतना अच्छा use कर पाएंगे. So अगर आप अपना English manual का पेज नंबर 3 देखेंगे, इसमें vocabulary को develop करने के लिए कुछ सजेशंस दिए गए हैं. एक तो कि डिक्शनरी का यूज हमें स्टूडेंट्स के साथ करना चाहिए. मे बी यू ऑल ऑलरेडी यूज डिक्शनरीज, वी शुड encourage it further. The other thing is that it's important that we build students' vocabulary, especially उन topics के चारों तरफ जो उनके environment में उनको नजर आते हैं. तो बहुत ऐसे टॉपिक्स पे नहीं जाना जिससे स्टूडेंट्स फेमिलियर नहीं है, बट मार्केट प्लेस और क्लासरूम, या मेला है, कोई फेस्टिवल है, लाइब्रेरी है, थिंग्स दैट दे सी अराउंड देम, उनसे रिलेटेड टॉपिक्स पे हम माइंड मैप के द्वारा एक वोकैब्युलरी को फर्दर एनहांस कर सकते हैं. फूड पे एक सैंपल माइंड मैप यहाँ पे दिया गया है. सो यू कैन सी दैट टाइप्स ऑफ फूड आइटम्स फ्रॉम वेजिटेरियन टू नॉन वेजिटेरियन, इंक्लूडिंग लिक्विड आइटम्स और फ्रूट्स, ऐसे 4 कैटेगरीज करके. सो एक थीम लिया फूड और उसमें हमने फर्दर कैटेगराइज करके
ऐसा वोकैबुलरी बिल्ड करने की कोशिश करी है। पेज नंबर 4 अगर आप इस मैनुअल का देखेंगे तो उसमें आपको कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं, सम आइडियाज ऑफ कोर्स, जिन आइडियाज को यूज करके आप क्लास में वोकैबुलरी बिल्ड कर सकते हैं। एंड यू कैन सो कैटेगरीज वहां पे डिफाइंड है कि अगर आपको लाइब्रेरी पे माइंड मैप करना है तो आपकी कैटेगरीज क्या होने हैं, पर ऑब्वियसली आप you can decide the ones that you want to choose and you can add more to these. The other classroom activity that we suggest that you do is, so अभी हम vocabulary की बात कर रहे थे, connecting the use of vocabulary to constructing sentences. So worksheet number 9 and worksheet number 17, ये worksheet number 17 है जो यहाँ पे sample दिखाए गए हैं। वर्कशीट नंबर 9 भी इससे मिलती जुलती है, बट एक सिंपल लेवल है सेंटेंस कंस्ट्रक्शन का। एंड दिस वर्कशीट विल हैव टू बी प्रिंटेड इन कलर, क्योंकि अगर आप इसके नीचे देखेंगे, वी आर आस्किंग चिल्ड्रन टू कंस्ट्रक्ट सेंटेंसेस थ्रू प्री डिफाइंड सम स्पेसिफिक कलर स्कीम्स। अगर हम बोल रहे हैं रेड प्लस ब्राउन प्लस येलो, so वो red, brown, yellow दिखने के लिए the worksheet will have to be printed in color. So these are additional activities जो 24 worksheets के अलावा vocabulary building and sentence improving how children construct sentences. These are two things that we have to keep giving time to, क्योंकि जो class 9 में उनको जब when they have to write answers to questions unseen passage में, so जितनी अच्छी vocabulary होगी, we can expect better answers, and if they know how to construct sentences, they'll obviously be able to write answers to questions from the unseen passage or wherever else. Unseen passage, sorry, आपको worksheet जो level 4 है, worksheets 20 through 24, उसमें हमने कुछ questions NCERT में जो English book है Beehive, वहां से दिए गए हैं। Now वो chapters ऐसे हैं जो they may have been done by now, वो शायद summative assessment 2 में वो chapters included नहीं होंगे। Those have been given to make students practice how to understand questions, how to write answers to them. Okay, so it's not that यही questions यही chapters से questions final exam में आएंगे, they rather serve more as practice element.